Let me know my screen is visible or not. Okay, now I will present. Just a second. चलो, दिख रहा है सबको स्क्रीन? और आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, होमवर्क भी किया है, तो गुड। 6:15 is our lecture time. Those who are joining late. Okay, just to summarize, कल हमने सीखा about the different data type. Remaining दो data types हमने सीखे थे. चलो अभी हो गए. Settled everyone. Okay. So हमने कल remaining data types देखे, set and frozen set, right? जो 5 data types थे हमारे अलग अलग, उसमें से 2 data types हमने already कल देखा है, set and frozen set. Okay. और set frozen set derived data types, unordered collection. unordered मतलब जो आपने नंबर इंसर्ट किया था उसी नंबर में नहीं आया वो, unordered, right? And duplicates are not allowed in the set. Clear? Then we started with the functions. Functions main use क्या है? ये automate करना है, और if you want to optimize, आपको repetitive करना नहीं, मतलब you don't have to create any code multiple times, or to avoid a repetition of the code. मतलब repetition avoid करने के लिए people use functions. Okay, functions is one of the, like, what you can say, properties in any programming language. It's not only in the Python, but in most of the programming language we have a something called function. It works across any programming language same. मतलब उसमें आप कुछ लिखोगे, then parenthesis लगाओगे, and उसके अंदर some arguments you will pass, right? फैन थोड़ा कम हो सकता है, एसी भी शुरू है शायद, कोई भी एक शुरू कर दो. It's okay. तो क्लियर सब कल का? दोज हु आर नॉट प्रेजेंट yesterday they can check, कल का वीडियो आप देख सकते हो ऑनलाइन, इट इज ऑलरेडी अपलोडेड. सो लेट्स स्टार्ट न्यू. इनबिल्ट फंक्शंस के आगे बढ़ते हैं हम. इनबिल्ट फंक्शन के आगे देयर इज वन मोर टाइप ऑफ अ फंक्शन which is called user defined function. Okay, ये था इनबिल्ट फंक्शंस, राइट? और इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी होमवर्क में किया है. Homework was everyone has to check at least 1 or 2 functions. So एक या दो functions आप check कर सकते हो. And then you can explore additional functions. सबसे important हमने input function देखा. What input function does is, user से आपको कुछ values accept करना है in the program. So you can achieve that using a input function. Okay, मतलब आपका प्रोग्राम पूरा डायनामिक बन जाएगा. So इसके लिए हमने एक एग्जांपल देखा था, sum of two numbers, but we had a one issue. input function हमेशा string में वैल्यू इंसर्ट करता है, मतलब आपने input function यूज किया तो वो अल्टीमेटली एज अ स्ट्रिंग आपको वैल्यू देगा. So even though हमने कल age एक्सेप्ट किया था, राइट? So he accepted a age. So मैंने इंटर किया था 77 नंबर, but still it was accepted as a string. Hope you guys remember.
तो हमने उसे कन्वर्ट किया यूजिंग int इंटीजर फंक्शन, क्योंकि 77 is a number, so to make it a number from a string I used an inbuilt function called integer. Clear? So all these things we covered yesterday and hope आपको along with ये दो functions आपको explore करने के लिए बोला था, along with this I asked you to practice on the input function. मतलब सिनारियोज क्रिएट कीजिए, सच एज स्टूडेंट के रिलेटेड आप कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर रहे हो, स्टोर से रिलेटेड है, फीडबैक रिलेटेड है, एडिशन ऑफ टू नंबर, समेशन ऑफ टू नंबर्स, ऐसे कुछ अलग अलग फंक्शंस है, राइट? इसको आपको एज अ इनपुट, मतलब इनपुट फंक्शन यूज करके आपको फंक्शन प्रोग्राम लिखना था, राइट? इफ यू वांट क्विकली वी कैन सी वन प्रोग्राम, कौन सा कर सकते हैं? should we go with the sum of two number जो हमने partially dynamic बनाया था, तो completely actually we have seen. Okay, anyways it's too easy. Maybe after this we can see one more few functions. Will not much time. तो inbuilt functions सबको clear है? Now next part becomes is a user defined functions. Okay, तो ये देखिए, दिस इज इनबिल्ट फंक्शन में हमने इनपुट यूज किया है इंटर थ्री नंबर्स. डॉट स्प्लिट नाम का एक फंक्शन है, ये क्या करता है, जो भी मैं इंटर करूंगा वैल्यू वो इसको स्प्लिट करता है. इनपुट फंक्शन है इंसर्टेड 34, 56, 78, ऐसे मैंने एज अ यूजर आई इंटर्ड. बट स्प्लिट क्या करेगा, ब्रेक करेगा, मतलब 34 को ब्रेक करेगा, 56 में ब्रेक करेगा, 78, ऐसे तीन टुकड़ों में वो स्ट्रिंग ब्रेक करेगा. And then it will save as number 1, number 2, num3, and then you can convert all these three numbers such as num1, num2, num3. If I want to just to give an example, num1, num2, num3, ये तीन वेरिएबल है, is equal to operator input function. Okay, सिर्फ मैं इतना ही लिखता हूं. Let's see what happens. Or maybe copy, क्योंकि if you want to continue or if you want to take a multiple inputs, then how you can do it. यहाँ पे मैं let's modify this code और give, I will put hash comment और इनका comments remove करता हूँ मैं. Okay, to control and forward slash ये shortcut है, ये सब if you know. ठीक है, अभी क्या है, नंबर 1 एक वेरिएबल है, num2 एक वेरिएबल है, num3 एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू, मैंने सिंपल इनपुट फंक्शन लिखा है, राइट? एंड यहाँ पे इंटर थ्री नंबर्स, ऐसा टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट इज दिस कोलन. तो आइडियली क्या होना चाहिए, लेट्स सी. बाय द वे यहाँ पे एरर आ जाएगा, बट स्टिल चलो. अभी क्या बोल रहा है, इंटर थ्री नंबर. ओके, सो आई विल इंटर 34. I can give a space as well. Okay, space भी accept करेगा, not an issue. Enter. Error क्यों आ रहा है, too many values. क्यों, क्योंकि आइडियली मुझे तीन वैल्यूज देने थे, तीन वेरिएबल के लिए तीन वैल्यूज, बट मेरे इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, जो मैंने इंटर किया है इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है वो, राइट? तो इसको कहीं ना कहीं मुझे ब्रेक करना है. दिस इज अ स्ट्रिंग. इफ यू डोंट बिलीव, कॉपी, एक काम करते हैं, टेस्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें ये डालेंगे एंड देन टाइप ऑफ टेस्ट में प्रिंट करता हूं सिर्फ. देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम स्पीकिंग, और इनको कमेंट कर देता हूं. ओके, सिर्फ इतना ही कोड रन करेंगे. प्रिंट, यहाँ पे आ रहा है, आई विल गिव 56 स्पेस 88 स्पेस 44, इंटर. अभी टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग, राइट? टेस्ट का टाइप स्ट्रिंग आ रहा है, इवन दो मैंने स्पेस लिखा है. बट इफ आई वांट टू असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब इसको कहीं ना कहीं कट करके मुझे 56 अलग चाहिए, 88 अलग चाहिए, 44 अलग चाहिए, तो इसके लिए देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड स्प्लिट. ओके,
So that's what I have used it here. At the top of देखोगे split, तो मैं split space में भी कर सकता हूँ, कॉमा में भी कर सकता हूँ. I can do the, चलो in our case I will split on the space. Okay, यहाँ पे space दिया है मैंने. And let's execute this code. बताइए 66 this enter. आ गया. एडिशन ऑफ थ्री नंबर 66, 87, 45 is 198. यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है, देखिए द एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स num1 num2 num3. ओके, आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है, हमने तो आज तक सिर्फ एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स इतना ही लिखा था. सो व्हाट इज दिस f, ये क्या आ रहा है नया वाला, राइट? एंड डायरेक्टली एडिशन विदाउट एनी वेरिएबल में डायरेक्टली ऐड कैसे कर पा रहा हूँ, राइट? सो दिस इज नथिंग बट एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग. जो आज तक हमने सीखा है, सिर्फ हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग वी कैन प्रिंट, बट देर इज वन मोर मेथड और वन मोर वे. आप कंबाइन कर सकते हो स्ट्रिंग एज वेल एज वेरिएबल्स. सो आइडियली हमने आज तक इतना ही किया है, प्रिंट इसके ब्रैकेट द एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स, इतना ही किया है, राइट? एंड देन कॉमा करके आई कैन पुट अ नंबर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी है. ओके, सपोज नंबर 1. इफ आई प्रिंट दिस, ओके एवरी टाइम आई नीड टू डू दिस. ये देखिए द एडिशन ऑफ नंबर 3 45, इतना नंबर 1 आ रहा है, राइट? ये यहाँ पे. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, हम क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग के अंदर, दिस इज अ स्ट्रिंग, आई कैन ऐड वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स में ऐड कर सकता हूँ. एंड आई कैन क्रिएट दिस प्रिंट का जो स्टेटमेंट है, इसको और डायनामिक बना सकता हूँ. तो जो वेरिएबल उस स्ट्रिंग में आएगा और उस वेरिएबल में आएगा, स्ट्रिंग विल प्रिंट दैट वेरिएबल. सो इसे कैसे बनाना है, यू नीड टू सिंपली ऐड स्मॉल f हियर, मतलब यहाँ पे स्मॉल f ऐड करना है. दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग का ही दूसरा वर्जन है कॉल्ड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग. ये क्या करता है, आपके स्ट्रिंग में कुछ वेरिएबल्स है, अलग अलग वेरिएबल्स आप इंसर्ट कर सकते हैं. बट टू डू दिस यू नीड टू यूज अ स्क्वायर curly bracket. देखिए, ओके. सो द एडिशन ऑफ थ्री नंबर इज num1 num2 एंड num3. अभी आप देख रहे होंगे कि स्ट्रिंग मेरा पर्पल कलर में दिख रहा है, बट वेरिएबल मेरा व्हाइट कलर में दिख रहा है, राइट? सो जो भी मैं वेरिएबल इंसर्ट करूंगा, मेरा स्ट्रिंग अकॉर्डिंगली वो वेरिएबल और वो वैल्यू प्रिंट करेगा. नॉट ओनली दिस, कर्ली ब्रैकेट में आई कैन डू कैलकुलेशंस एज वेल. यहाँ पे मैं num1 num2 num3, इफ यू वांट टू डू एनी अदर कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो. तो ये जो हम स्ट्रिंग, अभी तक सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करते थे, आज हम प्रिंट कर रहे हैं डायनामिक स्ट्रिंग, जो वेरिएबल के हिसाब से चेंज होगा. So this is, if you want to achieve this functionality, you can use a f, small f. यहाँ पे रेगुलर स्ट्रिंग लिखना है, उसके आगे स्मॉल f लगाना है, that becomes a formatted string. थोड़ा दिस इज लाइक, ये प्रोग्रामिंग डायनामिक बनाने का एक टाइप है. ओके, सो यू नीड टू प्रैक्टिस अ बिट. डायरेक्टली ये समझ नहीं आएगा, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए. वो f हटा के, जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट, इफ आई रिमूव दिस f, ओके, तो ये क्या होगा, लेट्स रन. ये तब तक मैं हटा देता हूं. ये क्या आ रहा है, द एडिशन ऑफ थ्री नंबर इज num1 num2 num3. क्यों? क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग है ना, रेड कलर में देखिए पूरा स्ट्रिंग है, बट ये स्ट्रिंग में नंबर 1 जो है ये वेरिएबल है. तो ये स्ट्रिंग को कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल है? सो दैट्स व्हाई आई हैड टू गिव हियर a small f. f means formatted string. if I f, ये देखिए, तो ये स्ट्रिंग अलग हो गया, ये वेरिएबल्स अलग हो गए. सो अभी ये डायनामिक हो गया. क्लियर सबको? ओके,
गुड. सो प्रैक्टिस कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. और मे बी मोस्टली कंपनी में लोग यही यूज करते हैं बिकॉज इट्स अ रियल टाइम में चेंज होगा. हर बार स्ट्रिंग कोई चेंज नहीं करेगा. जो भी वैल्यूज आएंगे उसके अकॉर्डिंगली मुझे वो चेंज होना चाहिए, राइट? मतलब आप जब भी वेबसाइट्स में वगैरह कहीं भी इंटर करते हो और लॉग इन करते हो फेसबुक में वगैरह, तो सारा डिटेल आपके पर्सनलाइज होता है ना. ऊपर आपका नाम दिखता है, नीचे मैसेज रहता है, हाय हाय XYZ योर क्रेडिट. आप जब भी बैंक अकाउंट में लॉग इन करते हो तो वेलकम यूजर आपका नाम आता है ना, वेलकम. तो ये कैसे आता है? हर बार कोई कोड चेंज नहीं करता जाके, और एज पर यूजर वो कोड चेंज नहीं करता कोई. तो वहां पे ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करते. तो जो भी यूजर का नाम है वो एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा, और वो वेरिएबल आई विल यूज इट इन द हेलो स्टेटमेंट. हेलो यूजर, और हेलो कपिल, हेलो अनिल, हेलो somebody, हेलो XYZ. तो ये डायनामिकली कैसे चेंज होता है इन एनी वेबसाइट. जो भी वेबसाइट आप कर रहे हो, ऐप यूज करते हो आप, राइट? तो इसका मतलब एप्लीकेशन वहां पे होता है. क्लियर? जहां पे भी आपको डायनामिकली सब कुछ चेंज करना है, पूरा इंटरफेस हो जाए, आपके वेबसाइट का इंटरफेस, ऐप का इंटरफेस, जो भी इंटरफेस है वहां पे. वो फंक्शन स्प्लिट फंक्शन यूज करने के पहले डॉट की यूज किया. Okay, that's good question. So what is this? Is nothing but a dot operator. इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर. और जो ये हम डॉट यूज कर रहे हैं, इट implies कि ये जो स्प्लिट फंक्शन है, इट वर्क्स ऑन दिस स्ट्रिंग. ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करेगा. मतलब मैं सिर्फ स्प्लिट नहीं लिख सकता. जैसे सिर्फ इनपुट लिखता हूँ ना, यहाँ पे इज इक्वल टू करके इनपुट, तो मैं इज इक्वल टू करके स्प्लिट ऐसे नहीं लिख सकता. तो that's why I need to insert that dot. और ये डॉट लिख के जो मैंने आगे लिखा है, it's actually called a method. तो वो हम थोड़ा आगे जाके जब स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है और डिटेल में पढ़ेंगे, देन यू विल रियलाइज कि वो डॉट क्या कर रहा है वहां पे. ओके, एक्चुअली उसका मीनिंग है, इट्स कॉल्ड अ मेथड. जो डॉट लगा के हम आगे लिखेंगे, इसको बोलते हैं मेथड. एक्चुअली फंक्शन है, बट वो फंक्शन यूज करने के लिए आपको डेटा टाइप पे डिपेंड करना पड़ेगा, इनके स्ट्रिंग पे. ऐसे बहुत सारे मेथड्स है. मतलब लिस्ट के ऊपर कई फंक्शन वर्क होते हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे लिस्ट के मेथड्स. मतलब लिस्ट डॉट ऐड, तो वो क्या करेगा, उस लिस्ट में ऐड करेगा वैल्यू. तो ये थोड़ा आगे जाके हम पढ़ेंगे इन डिटेल. बट गुड ऑब्जर्वेशन, मतलब आपने ऑब्जर्व किया और सही ऑब्जर्व किया. सो दैट इज अ फंक्शन एंड वी आर यूजिंग इट ओनली स्पेसिफिक टू दैट स्ट्रिंग. तो इसीलिए हमने वो फंक्शन और डॉट वहां पे रखा है. ओके, सो नेक्स्ट विल मूव टू यूजर डिफाइंड फंक्शन. अभी बहुत हो गया इनबिल्ट फंक्शन. मतलब मान लीजिए आपने पाइथन डेवलपर ने जो फंक्शंस बनाए हैं यहाँ पे, इतने ही फंक्शंस है क्या? आपको आपका खुद का फंक्शन बनाना है तो, मतलब मान लीजिए आपको ऐसा फंक्शन बनाना है कि वो 3 नंबर लेगा एज अ इनपुट और तीनों नंबर का एडिशन करेगा. आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल. आप 100 मतलब एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो 100 नंबर्स, अलग अलग नंबर्स जो है. बाय द आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर को कंफर्टेबल है, जो हम फंक्शंस को पास करते हैं, दैट इज आर्ग्यूमेंट और अ पैरामीटर. देयर इज अगेन फाइन डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर, वो और आगे जाके हम पढ़ेंगे. बट कंसिडर जो पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं, ये जो पैरेंथेसिस के अंदर हम पास करते हैं, यहाँ पे फंक्शन रहता है, इसको बोलेंगे पैरामीटर्स, नहीं तो आर्ग्यूमेंट, राइट? ओके, सो यूजर स्पेसिफिक हमें कुछ बनाना है तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस ऑप्शन है हमारे पास, और वो हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं खुद का, और खुद का लिख सकते हैं. जैसे आपने बोला प्रिंट, तो प्रिंट हो रहा है, राइट? तो हम खुद का फंक्शन बना सकते हैं. ये प्रिंट जो फंक्शन बनाया है, ये पाइथन डेवलपर ने बनाया है, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शंस. So that, like, the function which till now you have used, it is defined by a Python developers. It is inbuilt in the Python code.
So that's why it is called a inbuilt functions. But what if you want to build your own function? You have some specific requirements. So to meet that specific requirements, we have user defined functions. तो ये let's see कि user defined functions क्या है और कैसे लिखा जाता है. Okay. So लिखने का तरीका ये है. There is a keyword called def. It's called define. तो def कीवर्ड है, ये लिखना पड़ता है. देन आपके फंक्शन का नाम, द नेम ऑफ योर फंक्शन. तो जैसे प्रिंट एक फंक्शन का नाम है, राइट? तो आपके फंक्शन का कुछ नाम देना पड़ेगा. सो मेरा फंक्शन का नाम है सम ऑफ 3 नंबर्स. ओके, सम ऑफ 3 नंबर्स. और ये फंक्शन क्या आर्ग्यूमेंट लेगा? 3 नंबर आर्ग्यूमेंट लेगा. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. These are nothing but a variable. ये 3 वेरिएबल मेरा आर्ग्यूमेंट लेगा. एंड देन ये 2 कोलन देना पड़ता है. ओके. इसके बाद whenever you type this कोलन, आपने कोलन दिया, I want to observe आगे क्या होता है. कोलन और हिट इंटर, इंटर करना है. तो इंटर के बाद आपका फंक्शन क्या करना चाहिए? आप बोलोगे सर मेरा फंक्शन प्रिंट करना चाहिए वो 3 नंबर क्या है. तो लिखिए प्रिंट क्या करना चाहिए? My first number is, कॉमा करके num1, ये मेरा पहला नंबर है, राइट? अगेन प्रिंट my second number is, जो आपका सेकेंड नंबर है, num2. देन प्रिंट my थर्ड नंबर. थर्ड नंबर कौन सा है आपका? is, कॉमा, सॉरी, कॉमा नंबर 3, num3, राइट? यही है ना आपके 3 नंबर. मतलब ये ऊपर वाले 1 2 3, ये 3 नंबर लिखा है हमने. और इसी को मुझे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में लिखना है, तो सम निकाल देते हो. चलो, द 3 नंबर्स आर कर देते हैं. कौन कौन से 3 नंबर है? ये है ना. यहाँ पे लिखिए कर्ली ब्रैकेट देके आपको कॉमा देना पड़ेगा. कॉमा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, स्टार्ट होगा, एंड होगा. ये प्लस को निकाल देते हैं, राइट? तो आपका फंक्शन क्या कर रहा है? प्रिंट कर दे. एक्चुअली सम नहीं है तो प्रिंट है मेरा. ये प्रिंट 3 नंबर्स, प्रिंट 3 नंबर्स ऐसे लिखता हूं मैं. बाय द वे स्पेस अलाउड नहीं है ना, तो इसीलिए आई एम गिविंग. तो ये मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है. इस फंक्शन का काम क्या है कि 3 नंबर्स प्रिंट करना. तो मैं रन करता हूँ इसे. पहले तो एग्जीक्यूट करना पड़ता है. किया एग्जीक्यूट, तो ये मेरा क्या हो गया? प्रिंट 3 नंबर नाम का फंक्शन बना. तो इसको भी मैं कॉल करता हूँ. कॉल मतलब ये जो फंक्शन है, कॉपी यहाँ पे लिखना, देन ये पैरेंथेसिस, राइट? जैसे प्रिंट हम फंक्शन कॉल करते हैं, सो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल. इसके अंदर क्या पास करना है? 3 नंबर. बताइए नंबर 40, 54, 77, 88. अभी ये जो मैंने फंक्शन लिखा है इसको एग्जीक्यूट कीजिए. आ गया, देखिए. My first number is ये, second is ये, third is ये, the 3 number are this. तो ये क्या हो रहा है? इसके अंदर जो है यहाँ पे, it is executing all the codes. ये देखिए, है ना, सब रन कर रहा है ये. तो ये क्या हो गया? ऑटोमेशन हो गया. I can put any number here, forget this one, put something like this and execute. वो नंबर प्रिंट होगा. Not only this, I can create multiple times. I can call. यहाँ पे कॉल कीजिए, यहाँ पे कॉल कीजिए, ये कॉल कीजिए, कुछ भी नंबर यू कैन डू. इसके भी अलग अलग वेरिएशंस है, बट यू कैन डू. ये देखिए मल्टीपल टाइम्स आई कैन कॉल. सेम कोड मैंने लिखा है, बट हर बार मैं वही कोड यूज कर रहा हूँ, राइट? तो इससे ऑप्टिमाइजेशन हो गया आपका. तो दिस इज कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. और ये डीएफ मतलब डिफाइन. तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन डेफिनेशन. इसको बोलेंगे फंक्शन डेफिनेशन.
ये हो गया मेरा फंक्शन डेफिनेशन, ओके। एंड ये नीचे जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको बोलेंगे फंक्शन कॉल। फंक्शन फंक्शन कॉल मतलब मैं फंक्शन को बुला रहा हूँ, राइट। और ये फंक्शन कॉल क्या करेगा, मेरे दिए तीनों वैल्यूज जो है यहाँ पे, 1 2 3 नंबर, ये ऊपर भेजेगा नंबर 1 में, ये जाएगा नंबर 1, ये जाएगा नंबर 2, ये जाएगा नंबर 3, राइट। जितने मेरे यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट दिए हैं, यहाँ पे भी 3 है। आप बोलोगे सर मैं सिर्फ एक ही देख के देखता हूँ क्या होता है, समझ में आता है कि मेरे कोड को क्या बोल रहा है। प्रिंट 3 नंबर, जो मेरा ये फंक्शन है, मिसिंग 2 रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। कौन से मिसिंग, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो ये ऑलरेडी पाइथन इंटेलिजेंट है, आपने बोला है 3 चाहिए तो आपको 3 नंबर पास करना ही है कंपलसरी। ट्राई कीजिए 2 के साथ। अभी क्या बोल रहे हैं, मिसिंग 1 आर्ग्यूमेंट, 3 नंबर देके देखिए, इट ऑलरेडी वर्क्स, राइट। क्लियर सबको। सो व्हाट इफ मुझे ये जो मेरा फंक्शन है, हर बार ऐसा नहीं होता कि मुझे 3 नंबर है, व्हाट इफ मेरे पास नंबर नहीं है एक बार, और इन रियलिटी आप ऐसा कई बार होता है। मान लीजिए एक फॉर्म आप भर रहे हैं, ओके। फॉर्म में कई बार कई कंपलसरी फील्ड्स रहते हैं, कई ऑप्शनल फील्ड रहते हैं, सच एज आपका नेम हो गया, देन यू हैव मिडल नेम, देन यू हैव सरनेम। So mostly first name and last name और first name and surname ये कंपलसरी रहता है, मिडल नेम इज ऑप्शनल। ऑनलाइन आपने फॉर्म भरा होगा, कहीं यूज किया होगा इसका, राइट। तो फिर उस केस में मान लीजिए बैक एंड में मैंने एक फंक्शन लिखा है यूजर के सारे डिटेल्स कैप्चर करने के लिए और रिकॉर्ड करके मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है, ओके। तो फिर उस केस में कैसा होगा, कंपलसरी मुझे भरना ही है, बट मेरा फंक्शन तो लिखा है मैंने 3 नंबर के लिए लिखा है, बट आप बोल रहे हो कि सर 2 कंपलसरी है, 1 ऑप्शनल है, तो ये कैसे अचीव करना है फंक्शनैलिटी। सो वी कैन अचीव दिस फंक्शनैलिटी एज वेल। इसको बोलते हैं आई कैन गिव अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मैं क्या करूंगा, सरनेम लिखा है तो वो सरनेम एक्सेप्ट करो, नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट कुछ तो डालो, डिफॉल्ट नल डाल दो आप सरनेम और सॉरी मिडल नेम में। तो ये अचीव किया जाता है। एक काम करते हैं, सेम एग्जांपल के साथ नंबर 2 मुझे डिफॉल्ट देना है, ओके। और एक्चुअली डिफॉल्ट सेंटर से नहीं वर्क होता, इधर हैज टू बी फर्स्ट एंड लास्ट, बट ठीक है चलो, मैं आई विल गिव यू द फर्स्ट वन। सो आई विल राइट इज इक्वल टू 10, ओके। इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ इसको, एंड इसे लिखता हूँ इज इक्वल टू 30, एंड दिस इज और इज इक्वल टू 50, ओके। तो इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी असाइन करके रखा है। लेट्स रन। हो गया एग्जीक्यूट कोड मेरा। आई विल कॉल नाउ फंक्शन, ये डिफाइन हो गया मेरा फंक्शन। बाय द वे, ओके, वन थिंग आई नॉट श्योर वेदर यू ऑब्जर्व्ड और नॉट, यहाँ पे स्पेस क्यों आ रहा है, ऊपर तो कभी स्पेस नहीं आया था, कभी भी ये देखिए यहाँ पे भी कहीं स्पेस नहीं था। और देयर इज वन मोर थिंग, हैव यू ट्राइड ये आगे करके ऐसा करके एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ट्राई किया है क्या किसी ने, मतलब हम पाइथन पढ़ रहे 4-5 दिनों से। Sir, it's called as a block. ओके, ब्लॉक, इंडेंट, व्हाट एल्स, व्हाट अबाउट अदर्स, दोज हु वांट द लर्निंग पाइथन फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको क्यूरियस, मे बी आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। ये देखिए ऐसे यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, नथिंग, एंड एग्जीक्यूट कर दीजिए कोड, वेदर इट वर्क्स और नॉट। विदाउट दिस, बाय द वे, नॉट ओनली दिस, आप कोई भी कोड रन करके देख सकते हो, नॉट दिस वन, आउटपुट डिफाइन नहीं है, बट ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर का कोई भी कोड, आई एम नॉट आस्किंग द स्पेसिफिक कोड। आपने अभी तक जो होमवर्क में किया है प्रैक्टिस, वो कोड आप स्पेस देके रन करके देखिए एक बार, वर्क होता है क्या, ओके।
it will not, it doesn't work, sorry. So why it doesn't work? Because पाइथन को जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे एक लाइन में लिखना पड़ेगा. इफ यू डोंट राइट तो पाइथन विल कंसिडर इट एज अ एरर. मतलब मान लीजिए बीच में ही मैंने कुछ यहाँ पे अभी ये, इफ आई स्टार्ट गिविंग सच रैंडम स्पेस, राइट, पाइथन को लगेगा कि ये तीनों लाइन अलग है, ये तीनों लाइन एक कोड के हैं और ये दोनों लाइन अलग प्रोग्राम के हैं. इसको बोला जाता है ब्लॉक. सो मतलब पाइथन क्या करेगा, इट विल स्टार्ट, ये पहले एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद यहाँ जाएगा, क्योंकि वो एज अ इंडेंट और मार्जिन एज अ रेफरेंस कंसिडर करता है हर बार. तो आपको क्या लिखना है, आपको एक मार्जिन में सारे कोड लिखना है कि आपका कुछ पर्पस अलग है. बाय द वे इंडेंट कब दिया जाता है हम देखेंगे, अभी आप ऑलरेडी देख रहे हो. एक्चुअली इंडेंट दिया जाता है जब यू नीड टू डिफाइन योर ओन फंक्शन. ऑलरेडी जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है ना, वहां पे इंडेंट दिया जाता है. मतलब पाइथन को समझाने के लिए कि ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, इस सारे फंक्शन में ये चारों लाइन कंबाइन है, इसमें कुछ अलग नहीं है. ओके, इसीलिए हम वो इंडेंट देते हैं. दिस इज कॉल्ड इंडेंट, इसको बोलते हैं इंडेंट. तो पाइथन में इफ यू स्टार्ट रनिंग, आगे पीछे कोड करोगे ना किसी भी प्रोग्राम में वगैरह, तो इट माइट नॉट वर्क. तो ये देखिए अभी तो चल रहा था ये कोड, अभी चल नहीं रहा है एंड यू आर गेटिंग इंडेंटेशन एरर. क्योंकि पाइथन को क्या लग रहा है, आपने तो यहाँ पे लिखा है, पाइथन को लग रहा है कि ये एग्जीक्यूट करना है, ये एग्जीक्यूट अंदर, मतलब इसका कुछ मीनिंग है और इस ये अंदर जा रहा है. तो दिस लाइन नीड टू बी एग्जीक्यूटेड. तो इसके लिए आपको कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा, इधर कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और लूप्स लिखना पड़ेगा. ये क्या लूप्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, हम देखेंगे, बट अंडरस्टैंड कि उसका मीनिंग अलग है. सो इस टाइप ऑफ लैंग्वेज को बोलते हैं इंडेंटेड लैंग्वेज. ये सेम फंक्शनैलिटी आपने इफ somebody has learned जावा और सी, वहां पे करली ब्रैकेट देते थे, याद है क्या? करली ब्रैकेट स्टार्ट होता था, इसके बाद अंदर कुछ लिख, Yes, sir. तो इसको बोलते हैं इन ब्लॉक. तो जावा सी सी प्लस प्लस में करली ब्रैकेट यूज करके हम ब्लॉक्स डिफाइन करते हैं, बट इन पाइथन स्पेस देके आप ब्लॉक्स डिफाइन करते हैं. ओके, तो ब्लॉक कब देना है कब नहीं है, और मतलब इसका ऑलरेडी आपको डिटेल में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. इफ यू स्टार्ट यूजिंग योर जुपिटर नोटबुक, ऑटोमेटिकली अभी आई वांट यू टू ऑब्जर्व हियर, ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, ओके, आइडियली जब मैं क्लिक करता हूं तो टाइपिंग कहां से शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ पे टाइपिंग शुरू हो रहा है. बट यूजर डिफाइंड फंक्शन में ऑलवेज मुझे क्या देना है, इंडेंट देना है. ये ऑलरेडी बाय डिफाइंड है. तो इफ आई गिव अ कोलन हियर एंड इंटर, अभी टाइप करना शुरू कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली इंडेंट ले लेगा. सो इट वर्क्स इन ऑल द IDEs, जुपिटर नोटबुक हो जाए, पाइचार्म, VS कोड, इसमें ऑलरेडी सब कुछ करके रखा है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वो ऑलरेडी ऑटोमेटेड है. बट ओनली थिंग इज थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा कि देयर इज अ इंडेंट एज वेल. आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी कॉन्शियस कि ऐसा कुछ रहता है इंडेंट करके. और ये इंडेंट आता है कोलन, जहां जहां पे भी कोलन दोगे आप, इंडेंट आएगा वहां पे. देयर इज वन मोर शॉर्टकट टू रिमेम्बर. ओके, ठीक है. सो लेट्स, कहाँ पे थे हम, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, राइट. लेट मी डिलीट दिस. ये देखिए, एंड दिस इज आल्सो रॉन्ग. थोड़ा भी आगे पीछे नहीं चाहिए, ये आगे और ये पीछे तो भी वो ये रहेगा. तो वी नीड टू बी वेरी इन लाइन, एग्जैक्टली एक लाइन में होना चाहिए. रन दिस कोड. कोड तो एग्जीक्यूट हो गया मेरा ये. ओके, अभी कॉल कीजिए, अभी आंसर क्या है पहले चेक कीजिए. ओके, लेट मी रिमूव सो मेनी नंबर, 54, 67 एंड 78. ओके, ये मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन, एग्जीक्यूट. आंसर क्या आ रहा है, 54, 67, 78. वही फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ.
बट व्हाट इफ पहले आपको क्या एरर आता था, राइट? सिर्फ एक नंबर पास करने से। अभी देखिए, अभी एरर आ रहा है क्या? नहीं, एग्जीक्यूट हो रहा है। 54 पास किया है, फर्स्ट नंबर 54, बट आपने तो सेकेंड एंड थर्ड लिया नहीं है, तो ये डिफॉल्ट नंबर जो आपने पास किया है 30 एंड 50, ये उसने यहाँ पे कंसिडर किया है, राइट? सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सो आपको कोई ऐसी फंक्शनैलिटी अचीव करना है जहाँ फंक्शन भी कॉल करना है बट एरर नहीं आना चाहिए, तो सारे पैरामीटर्स को डिफॉल्ट बना दो। उससे क्या होगा? एरर नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए एरर नहीं आएगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, आपने इफ मतलब जो आपको एक प्रोग्राम लिखने के लिए बोला था, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आपको ऑटोमेट करना है, तो एक फंक्शन लिखिए, कलेक्ट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो उसमें क्या क्या पास करना चाहिए? नेम, सरनेम, रोल नंबर वगैरह। तो ऐसे ही एप्लीकेशन है अलग अलग फंक्शंस के। हम कहाँ पे यूज करेंगे? मोस्टली हम जो numpy और pandas यूज करते हैं, आगे जाके पूरा डेटा रहेगा अपना, जो भी 10,000 लाइन है, 20,000 30,000 लाइन्स, वो सारे लाइन एज अ आर्ग्यूमेंट पास होते हैं फंक्शन को। ओके, मतलब numpy में आपको सम करना है बहुत सारे डेटा का, वहां पे डायरेक्टली फंक्शन है डॉट सम, पांडास में है pd डॉट सम, बट वो बैकग्राउंड में क्या करता है? ये पूरा डेटा सम नाम के फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करता है। सो दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग फंक्शंस, दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग आर्ग्यूमेंट्स और कैसे पास करना है। तो क्लियर है सबको व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स एंड द फंक्शंस? ओके, एंड देयर इज वन मोर थिंग, दोज हु आर मतलब जिनको पाइथन डेवलपर एज अ डेवलपर जॉब करना है, उनको फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ेगा। बहुत कुछ मतलब देयर इज वन थिंग, जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो, मतलब ये क्या होगा? फंक्शन कॉल। ओके, मेरा फंक्शन प्रिंट कर रहा है ना, इसलिए आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस कोड। बट मान लीजिए मेरे यहाँ पे प्रिंट है ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन के स्टेप्स है। मतलब टू गिव यू एन एग्जांपल, यहाँ पे सिर्फ मेरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन एडिशन नाम का एक वेरिएबल लिया है मैंने, और यहाँ पे मैं एडिशन कर रहा हूँ num1 प्लस num2 प्लस num3। ओके, आई एम पुटिंग दिस इन द कमेंट्स। मेरा यहाँ पे sum3 ऐसा कर देता हूँ, sum अंडरस्कोर ऑफ 3 नंबर्स। तो इसका मीनिंग क्या है? सम ऑफ 3 नंबर्स, ऐसा मैंने प्रोग्राम लिखा है। 3 नंबर में भेजूंगा, वो मुझे समेशन करके देगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। तो ये कैसे होगा? एडिशन नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसमें तीनों नंबर में ऐड कर रहा हूँ, और यही नंबर मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट एडिशन, राइट? यही है ना मेरा कॉपी, यहाँ पे ऐड एडिशन, ये है। सो लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। ये रन हो गया, फंक्शन डिफाइन हो गया, कॉपी कर दीजिए, लेट्स पेस्ट हियर। सेम एग्जांपल 54 लेता हूँ, because I have already passed the default arguments. If I run, आउटपुट में क्या आ रहा है? एडिशन ऑफ 3 नंबर, राइट? थोड़ा इसको स्ट्रिंग पास करते हैं, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। अभी रन करो, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स 134, राइट? क्योंकि ये 54 नंबर 1 में गया, नंबर 2 नंबर 3 तो हमने भेजा है। इफ यू डोंट वांट डिफॉल्ट नहीं भेजना है, एक काम करो, 10, 10, 10 भेज दो। क्या आंसर आना चाहिए? 30 आ रहा है, राइट? बट मान लीजिए ये आपने प्रिंट नहीं किया, ओके, आपने सिर्फ एडिशन किया है, ओके, एडिशन किया है, तो लेट अस सी क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है क्या? फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो गया, कॉल करके देखिए क्या होता है फिर। कुछ भी नहीं हो रहा है, बट एरर भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो एनी फंक्शन, एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन बाय डिफॉल्ट रन होता है,
कॉल भी कर सकते हो, आपने कुछ प्रिंट नहीं किया है तो। ये क्यों होता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट देयर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड रिटर्न। एक स्टेटमेंट रहता है हर एक फंक्शन में कॉल्ड रिटर्न। रिटर्न क्या कहता है कि व्हाटएवर, ये फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया तो रिटर्न मुझे एडिशन भेज दो। ऐसे आपने ये एडिशन जो वेरिएबल है ये आपको रिटर्न कर देगा। मतलब ये फंक्शन में कॉल कर दूंगा तो मुझे ये रिटर्न रिटर्न में मुझे मिलेगा, और ये रिटर्न में प्रिंट कर देता हूँ बाद में। मान लीजिए यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट लगा दिया। ओके, इतना हम, दिस इज जस्ट टू आपको थोड़ा बेसिक्स अंडरलाइंग फंक्शन कैसे काम करता है ये है। नॉट एक्सपेक्टेड कि आप यूज करोगे रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह, बट फ्यू पीपल आर इंटरेस्टेड, मतलब जिनको पाइथन डेवलपर वगैरह बनना है, देन दिस इज व्हाट इट इज। तो ये बाय डिफॉल्ट रिटर्न करेगा। अभी रन कीजिए 30। तो ये क्या हो गया? जस्ट टू एक्सप्लेन द फ्लो, 10 10 10 कहाँ गए 10? पहले तो ये तीनों नंबर यहाँ आ गए, राइट। नंबर 1 में क्या है? नंबर 1 नंबर 3 में 10, हियर 10 और हियर 10, और ये तीनों का क्या हो गया बाद में? एडिशन। तो एडिशन में क्या है अभी? 30, राइट। और वो 30 कहाँ है? इधर भी एडिशन में 30 है, राइट। एंड मैं रिटर्न भेज रहा हूँ, मतलब जिसने मुझे आवाज दिया है उसको मैं वापस भेज रहा हूँ। तो किसने आवाज दिया है? इसने आवाज दिया है, राइट, सम ऑफ 3 नंबर ने। तो यहाँ पे क्या आएगा? 30 और प्रिंट 30, इसीलिए मेरा 30 प्रिंट हुआ है। ओके, तो आपने फंक्शन कॉल किया तो आपको रिटर्न में कुछ आना चाहिए ना, तो इसीलिए वो रिटर्न में आता है। बट आइडियली आपने रिटर्न नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो रिटर्न करता है नन, NONE। एग्जीक्यूट कैसे? मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया, राइट, फिर भी मैं फंक्शन को कॉल करके प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखिए अभी क्या होता है, आ रहा है नन। मतलब आपने आवाज तो लगाया बट इसने कुछ भेजा ही नहीं आपको, क्योंकि रिटर्न कुछ लिखा ही नहीं आपने, तो इसीलिए वो बोलता है कि नन। ओके, सो ये देयर इज अ रिटर्न स्टेटमेंट एज वेल। ट्राई टू, आइडियली हम क्या करते हैं कि फंक्शन में ही प्रिंट, हमें जो फंक्शनैलिटी चाहिए वो ऐड करते हैं, बट इफ यू हैव सच रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक कि आपको कुछ रिटर्न आना चाहिए, वो रिटर्न पे आप कुछ कैलकुलेशन करोगे आगे जाके, देन यू कैन यूज सच डिफरेंट रिटर्न वगैरह स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। दोज हु वांट टू बी अ डेवलपर, मतलब पाइथन डेवलपर है, तो उनको ये याद रखना पड़ेगा, देयर इज ऑलवेज अ रिटर्न स्टेटमेंट दैट इज ऑप्शनल and it gives by default a none as a output. Okay. हा, जर तुम्ही प्रिंट लिहिला तर प्रिंट डायरेक्टली फंक्शन थ्रू प्रिंट होईल. जर तुम्ही तिथे प्रिंट नाही लिहिताय, तुम्ही रिटर्न काहीतरी करताय, मग रिटर्न आल्यावरती त्याला तुम्ही प्रिंट करू शकता. ओके, होप we started with, okay, so we started with user defined function. तो उसमें फंक्शन डेफिनेशन सीखा, फंक्शन कॉल सीखा, राइट। फिर उसके बाद हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स देखे, क्योंकि आपने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, वो तीनों फुलफिल नहीं हुए तो हमें एरर आ रहा था, तो हमने उसे डिफॉल्ट में कवर किया। फिर उसके बाद हमने देखा व्हाट इज रिटर्न, रिटर्न क्या करता है क्या नहीं है, राइट। सो लेट्स और थोड़ा आगे जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द ऐड नंबर्स। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट, एंड रिजल्ट को आई एम प्रिंटिंग, यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे नन आउटपुट आ रहा है। इफ आई रिटर्न समथिंग, रिटर्न करना है तो आई कैन डू इट, नॉट एन इशू। आप यहाँ पे प्रिंट लिख सकते हो डायरेक्टली, प्रिंट रिजल्ट, राइट, यही है ना आपका वेरिएबल। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, ये 4 आ गया। ओके, आई वांट यू टू टेल मी ये नन क्यों आ रहा है। ठीक है, इफ यू आर क्यूरियस मे बी यू कैन एक्सप्लोर, डिबग कीजिए इसको, क्या हो रहा है इशू। ओके,
ठीक है। सो नेक्स्ट आई एम आस्किंग अगेन ऐड नंबर्स का वही प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, सॉरी ऐड प्रोग्राम वही रन कर रहा हूँ। इट इज गिविंग, मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए, सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट उसने 0 0 लिया है, 0 + 0 0, रिजल्ट में क्या आएगा, प्रिंट 0, तो इसने 0 प्रिंट किया है यहाँ पे, है ना। सो इसको ही मैं प्रिंट करूंगा तो ये विल गेट अ नन एज वेल। तो ये नन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन का आंसर, अंदर वाले का आंसर क्या है 4, क्योंकि ये यहाँ पे प्रिंट हुआ है। फिर बाहर का जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, ये क्या करता है, जो भी रिटर्न आया है मुझे, फंक्शन ने जो रिटर्न भेजा है वो प्रिंट करना है मुझे। फंक्शन ने क्या रिटर्न भेजा है, क्या कुछ नहीं है, नन रिटर्न भेजा, तो इसलिए नन प्रिंट हो रहा है, राइट। करा रिटर्न, रिटर्न जर काय काय करू शकता तुम्ही, रिटर्न करा, 4 आंसर येईल तुम्हाला। रिटर्न, बाय द वे रिटर्न ये कीवर्ड है, इसलिए ग्रीन में हाईलाइट हुआ है। डीईएफ इज अ कीवर्ड, हाईलाइट, रिजर्व वर्ड कीवर्ड जो हमने देखा है। रिजल्ट कॉपी पेस्ट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। पहले सिर्फ लेट मी डिलीट दिस प्रिंट इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, सॉरी। ओके, हाँ अभी ये प्रिंट कर रहा है यहाँ का एंड रिटर्न कर रहा है ये 4। एग्जीक्यूट उसमें ही कैलकुलेशन है, रिटर्न भी कर रहा है। इफ यू रिमूव ऑल द रिटर्न्स, वो सिर्फ प्रिंट करेगा 4, है ना। सो होप थोड़ा आपको समझ में आया क्या नहीं है, हाउ इट वर्क्स। थोड़े एग्जांपल्स है, सिंपल सिंपल एग्जांपल, ट्राई टू कवर। आप खुद से प्रोग्राम बना सकते हो, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर लिस्ट वगैरह, है ना। यहाँ पे देखिए लोन का ईएमआई का कैलकुलेटर बना है, लोन ईएमआई कैसे, जो भी अमाउंट होगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय, आपको ईएमआई 12 महीने का रहता है ना, 12 कीजिए, अमाउंट डिवाइडेड बाय 12, तो आपको द ईएमआई इज दिस मच। बाय द वे दिस इज अ डॉट फॉर्मेट, ये डॉट लिखा है यहाँ पे क्योंकि ये एप्लीकेबल है ओनली टू दिस, इसको बोलेंगे मेथड। ओके, ये फॉर्मेट क्या मेथड है, जैसे हमने इनबिल्ट फंक्शन देखा था ना, वैसे ही स्ट्रिंग के मेथड देखेंगे, बट आई वांट टू, यहाँ पे आप कोरिलेट कर सकते हो, एफ स्ट्रिंग से कोरिलेट कर सकते हो, इसीलिए मैंने वो लिखा है। एफ स्ट्रिंग को ही आप फॉर्मेट करके भी अचीव कर सकते हो। एग्जीक्यूट कीजिए, ये क्या है, लोन ईएमआई कैलकुलेशन का एक फंक्शन मैंने बनाया है। तो फिर अमाउंट भेजिए, अभी लोन ईएमआई, मेरा अमाउंट इतना है, एग्जीक्यूट कीजिए, द ईएमआई इज इतना, जो भी कैलकुलेशन है वो, एंड देन दिस, डिवाइड होके आ रहा है क्या, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, मे बी वी विल अंडरस्टैंड। ओके, आ रहा है ना, 12 रुपए का लोन लिया तो 1 रुपए का ईएमआई आएगा, है ना। आईफोन आपने मान लीजिए आईफोन खरीदा 1,20,000 25,000, एग्जीक्यूट, ईएमआई आया 10,400 का, है ना। सिंपल प्रोग्राम, छोटे छोटे वेबसाइट पे आप देखते हो ना वो कैलकुलेटर, ईएमआई कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर, ये वो, सो दिस इज नथिंग बट यही है अंडरलाइन। तो हम यहाँ पे 100% डायनामिक कर रहे हैं कोड, होप यू आर एबल टू गेट इट। इवन नॉट 100%, अभी लोन ईएमआई और ये नंबर, इसको भी मुझे और डायनामिक करना है, तो आई विल राइट अ इनपुट, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इनपुट यहाँ पे लिखिए, इंटर यूर लोन अमाउंट, पहले इनपुट फंक्शन रन होगा, फिर वो ईएमआई को भेजेगा। यहाँ और एक प्रॉब्लम आ सकता है, हाँ क्यों, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या भेजेगा, स्ट्रिंग भेजेगा ना, तो इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो आई विल ऐड इंट और एक फंक्शन, नाइस। सो दिस बिकम अ फंक्शन चेनिंग। लोन बोलिए, अभी इस बार आपने 1,60,000 का कुछ खरीदा, इंटर, आ रहा है ईएमआई। सो रियल टाइम में आपने चेंज किया, क्या किया, इनपुट, इसका आउटपुट क्या आएगा, एसटीआर, राइट।
फिर ये int इनपुट फंक्शन आपने कन्वर्ट किया, ये स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया, जो भी नंबर है। फिर लोन EMI क्या है? फंक्शन कॉल है। फंक्शन कहाँ है? ये मेरा फंक्शन है लोन EMI यहाँ पे। तो ये जो नंबर है, ये नंबर गया अमाउंट में, राइट? फिर वो अमाउंट डिवाइडेड बाय 12 हो गया EMI में। फिर EMI कहाँ पे आया? नीचे यहाँ पे। द EMI इज ये। Clear? So these are small things how you can start building the code. तो आपने स्टार्ट किया था स्टैटिक कोड से, एडिशन ऑफ टू नंबर। फिर बाद में हमने इनपुट फंक्शन यूज करके डिटेल्स लिया, स्टूडेंट के वगैरह डिटेल्स। फिर इसके बाद हमने इनबिल्ट फंक्शन पढ़ के और इनपुट फंक्शन पढ़ के वी स्टार्टेड क्रिएटिंग मोर डायनामिक प्रोग्राम्स। और आज फंक्शन सीख के आई हैव ऑलमोस्ट डन ऑटोमेशन। ये लाइन डायरेक्टली आप एज पर यूजर रन कर सकते हो। ये किसी को भेजिए, वो यहाँ पे इंटर डालेगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा, राइट? एंड आप बोलोगे सर इतना हम तो कुछ एप्लीकेशन नहीं बिल्ड कर रहे, कुछ वेबसाइट नहीं कर रहे, व्हाई? अगेन, जो हम आगे जाके लाइब्रेरीज पढ़ने वाले हैं, numpy pandas, आपके पास क्या रहेगा? जस्ट टू गिव एन कॉन्टेक्स्ट, एक्सेल शीट रहेगा, राइट? टेक एन एग्जांपल, कुछ भी एक्सेल ले लीजिए, ओके। आपके पास डेटा रहेगा, डेटा इज नथिंग बट एक्सेल फाइल, नहीं तो CSV, नहीं तो SQL का सर्वर पे है, राइट? यही डेटा रहेगा आपके पास। एग्जांपल प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये सारे हैं। तो क्या करना है? इन सब का सीन लेना है। तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली ये एडिशन करोगे? नहीं। और ये सब अवॉइड करने के लिए पाइथन क्या करता है? लाइब्रेरी यूज करता है कॉल्ड पांडास। तो वो इसके टेबल में कन्वर्ट करता है, ओके। देन ये कॉलम उठा के आपके इनपुट फंक्शन को भेजता है, इनपुट फंक्शन उसे नंबर में कन्वर्ट करता है। फिर आगे जाके इनबिल्ट फंक्शन है कॉल्ड सम, राइट? सम इनबिल्ट फंक्शन इफ यू हैव एक्सप्लोर्ड, तो वो सम हम यूज करके मुझे डायरेक्टली एडिशन आ जाएगा। तो ये सब बैकग्राउंड में रन होता है। ऐसा नहीं कि आपको इसका कोड बनाना है, somebody has done all the efforts, आपको सिर्फ वो फंक्शन कॉल करना है called sum, but you should know कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, क्योंकि आप लिमिटेड डेटा पे कभी नहीं काम करोगे। जैसे हमने एक्सेल पे देखा था, कुछ 5-6 हजार और मैक्सिमम 10 लाख रोज आप काम कर सकते हो। 10 लाख के ऊपर है तो समझो आपके पास करोड़ में डेटा है, देन यू शुड यूज अ पाइथन। तो आपको अनफॉर्चुनेटली पाइथन यूज करना पड़ेगा। जो भी आपके क्लीनिंग है, सिम डेटा अंडरस्टैंडिंग से लेके फॉर्मेटिंग, कंसोलिडेशन एंड प्योर टेबल, डेटा डिटेल्ड एनालिसिस, ग्राफ्स, जो हमने एक्सेल में पूरा फ्लो देखा एज अ डेटा एनालिस्ट, वो सारा फ्लो आप पाइथन में कर सकते हैं। सो इसीलिए हम ये सब कुछ देख रहे हैं। एंड ऑल दिस थिंग्स, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम मतलब डेटा कितना आ रहा है, ये बढ़ेगा, वैसे अंडरलाइन टेक्नोलॉजी चेंज होगी। लिमिटेड डेटा एक्सेल, थोड़ा ज्यादा डेटा पाइथन, पाइथन से भी आगे जाके अभी मान लीजिए दिन में 1 करोड़ का डेटा आता है, मतलब हमारे कंपनी का इफ आई गिव यू एग्जांपल, दिन में 10 या 12 करोड़ लाइन आइटम्स आते हैं। सो वी कैन इजीली हैंडल यूजिंग SQL एंड पाइथन वगैरह हैंडल कर सकते हैं। बट इफ यू गो इनटू गूगल और बाकी नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, अमेजॉन वगैरह है, उनका हर घंटे का 10 करोड़ 12 करोड़ डेटा जनरेट होता है। क्योंकि जस्ट गिव एन एग्जांपल, फेसबुक, फेसबुक पे कितने यूजर है? सम करोड़ एंड करोड़ ऑफ यूजर है, राइट? सब लोगों ने कहाँ पे क्लिक किया है, कौन से कंट्री में कितने लोगों ने क्लिक किया है किसी एड पे, कौन कुछ वीडियो देख रहा है, कुछ कमेंट कर रहा है, तो ये सारा डेटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा, कहीं ना कहीं जाके प्रोसेस होगा, कहीं ना कहीं जाके वो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस हो गए ना। तो ये पर सेकेंड करोड़ ऑफ करोड़ लाइन आइटम का डेटा जनरेट होता है। तो उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी है।
देन देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड बिग डेटा। बिग डेटा बोलते हैं जहाँ पे एक सेकंड में करोड़ ऑफ लाइन आइटम रन होता है, तो उसके लिए अलग डेटा है, उसके लिए पाइथन भी फेल हो जाता है। फिर 1 घंटे में 1 करोड़ लाइन आइटम आ गए तो पाइथन भी फेल होता है। तो उसके लिए देर इज समथिंग कॉल्ड पाई स्पार्क। देर इज कॉल्ड स्पार्क नाम का एक मतलब फ्रेमवर्क है और टेक्नोलॉजी है, पाइथन पे ही बिल्ट हुआ है, इसलिए पी वाई लिखा है उसके स्टार्ट में। पाई स्पार्क, पाई मतलब पाइथन का पाई और स्पार्क है टेक्नोलॉजी, तो पाइथन अंडरलाइन यूज करके स्पार्क का टेक्नोलॉजी बना है। ऐसा कुछ नथिंग नहीं, मतलब ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं है, वो सेम पाइथन के जो रन है स्क्रिप्ट है, सेम आप यूज करोगे, पाइथन का कोड यूज करोगे, ओनली उसके कई सिंटैक्स रहते हैं ना वो अलग। तो वो सब करोड़ एंड करोड़ ऑफ लाइन आइटम विद इन सेकेंड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो इसीलिए हम सब पढ़ रहे हैं, लाइक वॉट एवर वी आर लर्निंग, आज जो हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन चेन, फिर ये हमने भेजा, रिसीव किया, ऑल दोस थिंग्स। सो होप यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स। ऐसे नहीं कि हम बहुत ज्यादा इन डिटेल पढ़ रहे हैं, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस हम पढ़ रहे हैं। ओके, आई नो थोड़ा ये आपको ओवरवेलमिंग लग रहा होगा और you might get overwhelmed by all the new functions or new concepts, but trust me, if you practice every day जो हम सीख रहे हैं, it will be easy, you will start understanding कि what is a function, python क्या है वगैरह। okay, so we'll stop here, I don't want to take much time. There is one more thing just to curious note पे end करने के लिए। सर आपने बोला कि मुझे 3 नंबर का हमने सम देखा, व्हाट इफ 10 नंबर है, व्हाट इफ देयर आर 50 नंबर्स, मेरे पास 50 नंबर्स है एंड आई वांट द सम ऑफ ऑल दोस नंबर्स। रियल वर्ल्ड में तो अनलिमिटेड नंबर्स रहते हैं ना, अभी तो हमने एग्जांपल देखा 10 लाख नंबर्स आपने भेजा है पाइथन को, तो उसका प्रोग्राम कैसे लिखोगे? सो आई वांट यू टू प्रैक्टिस। तो मुझे 50 नंबर्स एक फंक्शन को भेजने हैं और वो फंक्शन मुझे सारे नंबर्स का सम करके रिटर्न करेगा। ओके, सो आई वांट यू टू डू दैट प्रोग्राम। using n इफ यू variable वांट value of n is 50. 50 की जगह 10 नंबर लीजिए आप, डू इट फॉर द 10 नंबर्स। 10 नंबर में पास करूंगा, 10 नंबर का एडिशन मुझे आना चाहिए। ओके, यस, आप कुछ बोल रहे थे ऑनलाइन, समथिंग आई मिस्ड। हाँ, यस अलका, यस, यू वांट टू से समथिंग? सर अभी जो हमने EMI जो फंक्शन देखा था, हाँ जो फॉर्मेट बोल के आपने एक मेथड यूज किया है उसमें, हाँ, तो हमारे पास फॉर्मेट बोल के एक इनबिल्ट फंक्शन भी है ना? यस, वही तो सर ऑलरेडी। फंक्शन एंड हाँ, मेथड का डिफरेंस क्या है सर? वही दैट्स व्हाट, वो डॉट लगा के हम जो आगे लिख रहे हैं, वट एवर वी आर राइटिंग द डॉट, ये डॉट दिख रहा है क्या आपको? ये यस डॉट सर। और उसके आगे जो लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ मेथड। और ये विदाउट डॉट है, विदाउट डॉट मतलब प्रिंट, प्रिंट के आगे मैंने कुछ डॉट लिखा है क्या? नहीं, नॉट ओनली प्रिंट, टाइप वगैरह जो हमने फंक्शन देखे हैं, राइट? और यहाँ पे कुछ डॉट लगा रहा हूँ क्या मैं? ये भी फंक्शन है, राइट? डॉट है क्या? नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, एंड ये डॉट लगा के मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं मेथड्स। हम ये थोड़ा जाके देखेंगे। मेथड्स मतलब द फंक्शंस विच आर यूज्ड और विच आर एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक डेटा टाइप्स, सच एज ये फॉर्मेट नाम का जो फंक्शन है ना, ये सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है। लिस्ट, टपल, इंटीजर, अलग अलग जो डेटा टाइप हमने सीखे उसके ऊपर काम नहीं करता, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे मेथड्स। वो स्पेसिफिक टू दैट डेटा टाइप है। वैसे स्पेसिफिक टू दैट डेटा टाइप बहुत सारे फंक्शंस है, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे और डिटेल में, है ना? ओके, सो आई वांट यू टू प्रैक्टिस, एंड पहले तो ये प्रैक्टिस कीजिए जो हमने आज सीखा है,
and then I want you to practice 10 नंबर मुझे भेजने हैं and 10 numbers I am passing. By the way, I can show you the code directly. ये देखिए कितने नंबर भेजे मैंने, कितने नंबर भेजे, मुझे आउटपुट में ये आंसर आ रहा है. ओके, ठीक है. सो दिस इज पॉसिबल. तो पॉसिबल तो है, ट्राई टू डू इट. आज तक हमने जो सीखा है उसके बेसिस पे आप ट्राई टू राइट द प्रोग्राम. So thank you all of you for your time. By the way, the 4 students who have joined, मतलब जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया है, क्रांति सिन्हा and Manali and few more students, maybe we can connect after this. So others, you can continue with your homework or you may disconnect. So thank you, thanks a lot.